the media is the most powerful entity on the earth. They have the power to make the innocent guilty and guilty innocent. Good evening, everyone. Institutions influence society as deeply as the media. It informs us, shapes public opinion, sparks important conversation, and often becomes a bridge between events and the people witnessing them. As future legal professionals, understanding the legal framework that governs such a powerful institution becomes both relevant and fascinating. It is therefore my absolute pleasure to welcome all of you to today's session of Optional Subject Decoded, an initiative by Team Udam that aims to help students to make an informed academic choices through peer learning and mentorship. My name is Kashvi and I will be your host for this evening. As we prepare to enter the second year, choosing an optional subject can feel both exciting as well as challenging. Through this series, Team Udan seeks to make that decision a little easier by creating opportunities for students to learn directly from seniors who have already explored these subjects and can share their first-hand experiences. Today's session is dedicated to the media law. Through this discussion, we hope to gain a clearer understanding of the subjects, its scope, preparation strategy, examination approach, and what students can realistically expect from it as an optional paper. This initiative has been organized by Abhinandan Kaul of Law Center 2, whose efforts through Team Udan continues to create valuable learning opportunities for students. It is now my absolute pleasure to introduce a speaker for today's session, Mr. Siddharth Yadav sir from Law Center 2. Having studied media law firsthand, Siddharth sir brings valuable insights into the subject and its practical aspects. Today, he will be sharing his experiences and guidance to help students to better understand the subject and make a more informed decision regarding the optional subject. We are grateful to him for taking out his valuable time to be with us today. A very warm welcome to you, Siddharth sir. We are also joined by Abhinandan, whose dedication and vision have made this session possible. Through Team Udan, he has consistently worked towards creating meaningful opportunities for academic learning, mentorship, and student development. Without further ado, I would now like to hand over the floor to Siddharth sir and Abhinandan to take the discussion forward. Thank you, Kashvi, for that introduction. You covered everything, more or less. And welcome to you all. Welcome, Siddharth Bhaiya. Thank you so much for taking out time to sort of attend this session and guide us all. So हम सब लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं एंड अब हम लोग सेकेंड ईयर में जा रहे हैं एंड दिस पर्टिकुलर सेशन इज प्रॉब्ली द लास्ट इन द सीरीज जो हमने स्टार्ट किया है विद रिस्पेक्ट टू सिलेक्टिंग एन ऑप्शनल सब्जेक्ट. सो जैसे आप सबको पता ही होगा कि हमें 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 4 ऑप्शंस एंड WCC special contracts, there are 2 options. Private international law is the 3rd option and the 4th is media and law. And with respect to all the 3 optionals, हमने sessions कराए हैं with the toppers and today we'll have a session with media and law with a topper of Law Center 2, Siddharth Yadav Bhaiya, जो अभी 2nd year में है, 3rd year में जा रहे हैं. So he'll like all the other sessions, he'll also sort of explain to us कि इस optional में क्या-क्या what are the pros of taking this optional, what are the cons, क्या-क्या sources हैं इस optional को पढ़ने के लिए and whether we have the acumen, whether we have the skill, the interest to take this optional or not. So ये जो clarity है ये हमें ज़रूर I hope that मिलेगी after this session. So thank you Siddharth Bhaiya for joining us and without further ado I'll give you the stage and you can sort of explain to us कि इस optional में क्या-क्या चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए before we opt for this option and what are the things that we should know that maybe this option is not for us. So with that, I'll give you the stage, Bhaiya, and you can explain to us all of the aspects. Thank you, Kashvi. Thank you, team Udan. So I was also getting very, मतलब बहुत सारे DMs आते हैं with regards to media law कि भैया लेना है नहीं लेना है क्या करना है. So I was also sharing this कि मतलब let's meet और फिर decide करते हैं क्या करना है. So media law वो is just a very recent law कि ऐसा नहीं है
जैसे कि आप BNSS और IPC CRPC इससे कंपेयर करोगे तो इट्स अ वेरी रिसेंट एंड मॉडर्न लॉ एंड इट इज इवॉल्विंग एंड डेवलपिंग डे बाय डे. सो पर्सन जिसको आने वाले फ्यूचर्स लॉ में या फिर लिटिगेशन में करना है उनको जाना चाहिए. बेसिकली आई विल स्टार्ट फ्रॉम मेरिट्स डिमेरिट्स, देन विल डिस्कस सिलेबस, और फिर हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं और ये भी बताएंगे कि किसको किसको लेना चाहिए, व्हाट आर द प्रोबेबल कॉम्बिनेशन. जैसे कि अभिनंदन ने बताया कि 2 लेने हैं हमें ऑप्शंस. तो ऐसे स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही मॉडर्न लॉ है, बहुत पुराना नहीं है. तो इट्स अ मेरिट पे बात करते हैं. मेरिट इज लाइक इट्स अ एक्सटेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. तो अगर आप केस मटेरियल उठा के देखेंगे तो इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, व्हाट हमारे मीडिया को स्पेसिफिक कोई राइट नहीं दी गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच की कॉन्स्टिट्यूशन में. तो इट्स एम्बेडेड इन आर्टिकल 19(1)(a) ओनली. सो इस पे काफी ब्रीफ डिस्कशन होता है. आपके करीब 1-1.5 महीना सेमेस्टर के सिर्फ यूनिट 1 या 2 पे ही चले जाएंगे कि व्हाट आर द थिंग्स एम्बेडेड इन आर्टिकल 19(1)(a. नॉट ओनली, आई एम जस्ट सेइंग कि आर्टिकल 19(1)(a) पे ही डिस्कशन होता रहेगा, नॉट ABC वो सब पे भी नहीं. सिर्फ एक आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच, और उसके बाद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो आर्टिकल 19(2) में दिया हुआ है. तो ये वन ऑफ द मेजर थिंग है. और उसके बाद एम्पावरमेंट थ्रू ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि केस मटेरियल आप खोलेंगे तो इसमें RTI एडवोकेट और ये सारी चीजें हैं मीडिया लॉ में. अगर किसी को ये सब इंटरेस्ट है RTIs में या फिर institutions पे लगे, तो मीडिया लॉ को प्रिफर कर सकता है. बाकी डिफेमेशन, राइट टू रिप्लाई, राइट ऑन सोशल मीडिया, जैसे कि पता होगा 66A ऑफ ITI, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा. तो उस पर क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द फ्रीडम्स एंड रिस्ट्रिक्शंस दैट एन ऑफ दिस कंट्री हैव. तो दिस इज ऑल अबाउट मीडिया. मीडिया इन जनरल इज इजी, बट लोग कहते हैं कि बहुत नंबर आसानी से मिल जाता है, यू कैन स्कोर इन 70s और 80s. बट इट्स अ मिथ कि 70-80 नंबर आ जाते हैं. बट इफ यू विल स्टडी फोकस तो उसमें ओके व्हाई इज देयर. So I was saying कि IT एक्ट के सेक्शन 6A को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था. तो उस पे काफी डिस्कशन होता है कि क्यों किया था, व्हाट आर द रीजन रिस्ट्रिक्शंस मीडिया लॉ पे. यूनियन ऑफ इंडिया आधार केस भी बोलते हैं, तो डिस्कशन होता है मीडिया लॉ. तो अगर हम इसके चैलेंजेस बताता हूँ मैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस. जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, बहुत ही डायनामिक में क्या है कि अपने सीनियर्स फिर सीनियर सुपर सीनियर्स के नोट के नहीं ले सकते. इट्स लाइक जैसे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भी एक टॉपिक है. तो दिस इज वेरी सब्जेक्टिव एंड डिपेंड ऑन द जज. होपफुली is it audible? No? Yes, yes, Priya. Now it's clear. Much better. Okay. So I was discussing the challenges, demerits of this subject 3031, I guess, LB. So it is dynamic and evolving subject. Unlike our IPC या फिर BNSS, जिसमें आप जैसे कि ज्यादातर बच्चों को इंटरेस्ट रहता है क्राइम में, तो जो केसेस जो मतलब डिसाइड हो जाते हैं एक बार कोई, तो उसके बाद वही चलते आते हैं. बट दिस इज लाइक कि इवॉल्व हो रहा है. तो मीडिया लॉ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं. तो इसमें यू कैन नॉट स्टिक टू समबडी सुपर सीनियर और सुपर सीनियर के नोट्स. आपको उस समय की जो सिचुएशंस हैं उसके हिसाब से आपको डील करना पड़ेगा. बाकी आंसर्स जो भी लिखना है वो बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव हो जाते हैं, सब्जेक्टिविटी आ जाती है. जैसे कि कोई कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे PYQ उठा के तो बहुत जेनरिक सवाल है. अगर अब फिर से ब्रेक हो तो प्लीज लेट मी नो. हाँ, तो सिलेबस ब्रेकडाउन में बता देता हूँ.
तो सबसे पहले यूनिट 1 में है मीडिया फ्री स्पीच एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मैंने बताया आर्टिकल 19(1)(a) एंड 19(2) का जो भी रिस्ट्रिक्शंस है। दूसरे में आता है प्राइवेसी एंड डिफेमेशन। तो फॉर अ कॉमन सिटीजन प्राइवेसी और डिफेमेशन अलग है, बट फॉर अ पब्लिक फिगर उसके लिए अलग है, दोनों चीजें। तो इन डेप्थ हम ये जानते हैं कि मतलब हमको ड्यूरिंग द कोर्स ड्यूरिंग द सेमेस्टर हमें बहुत अच्छे से समझाया जाएगा कि प्राइवेसी फॉर अ नॉर्मल सिटीजन है, जनरल और पब्लिक लाइक अ पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटी, तो वो काफी दोनों चीजें। तो ये पूरे सेमेस्टर के दौरान हमें एक डिफरेंस बताया जाएगा। फिर स्टिंग ऑपरेशन एंड ट्रायल बाय मीडिया है। तो दिस इज समथिंग, स्टिंग ऑपरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने कई बार गलत माना, कई बार ये भी माना है कि दिस इज नॉट राइट। एंड ट्रायल बाय मीडिया इज समथिंग जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है। दिस इज वेरी रिसेंट। आप लोगों ने देखा होगा सुशांत सिंह, रिसेंट एक्टर जो था, ही डाइड बाय सुसाइड। तो उसमें ट्रायल बाय मीडिया हो जाता है। तो हमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सेमेस्टर ये बताया जाएगा कि ट्रायल और मीडिया ट्रायल का और नॉर्मल ट्रायल का क्या डिफरेंस है और क्या फर्क पड़ता है मीडिया ट्रायल पर। वन ऑफ द एग्जांपल इज आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन, बट ही वाज अ सन ऑफ शाहरुख खान। तो उसके खिलाफ मीडिया ट्रायल हुआ था, जिसकी वजह से उसके जो ओरिजिनल ट्रायल पे था काफी असर पड़ गया था। तो ये सब जो जनरल लॉज हैं, जनरल मतलब जो चीजें चलती रहती हैं पब्लिक में, तो उससे रिलेटेड आपको लिख के आना होता है। और मतलब जो रिसेंट स्टैंड है सुप्रीम कोर्ट का, वो लिख के आना होता है, और वो स्टैंड काफी बदलता रहता है। फिर चौथा यूनिट जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज वेरी मतलब सब्जेक्टिव एंड वेरी डिस्क्रिशनरी टू द जजेस। हाँ, समीर, राइट। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वेरी वेरी डिस्क्रिशनरी टू द जजेस। कई बार जजेस मतलब बहुत सारी चीजें, बट अभी इवॉल्व होते होते काफी हद तक ठीक आया। रिसेंट केस ऑफ एनसीईआरटी, तो जो कि टॉक्स अबाउट द करप्शन इन जुडिशरी। तो दैट वाज अ मतलब दैट इज समथिंग दैट यू कैन राइट। जो केस मटेरियल में हमारे केसेस दिए गए हैं वो बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड है। बट जो सेमेस्टर के एग्जाम में आप जब आओगे तो मतलब आपको टीचर्स बताएंगे दैट यू हैव टू राइट रिसेंट केसेस। फिर है मीडिया रेगुलेशन एंड सेंसरशिप। प्री सेंसरशिप और पोस्ट सेंसरशिप दो कॉन्सेप्ट है, और इसमें इंक्लूड करता है वही 66A ऑफ आईटी एक्ट। तो दिस इज समथिंग जो कि मोटा मोटा मतलब मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। एंड अब मैं मतलब ये था किताब वाली बात है, अब मैं बताता हूँ आपको मतलब एज अ मतलब क्या मतलब कि व्हाट डू यू हैव टू चूज, कि क्या करना चाहिए। तो देखो मीडिया लॉ मतलब मैं बताता हूँ व्हाई व्हाई डिड आई चूज मीडिया लॉ, तो उससे हो सकता है आप सबको मदद मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल करने का मेरा कारण था कि इसका सिलेबस मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब बुकिश नहीं है। आप अगर रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ लो या फिर ऐसा कोई भी तैयारी करते हो, जनरली स्टूडेंट डू इन लॉ फैकल्टी, तो उससे काफी फायदा होता है। एंड इसके कंपैरिजन में जो तीन मेजर सब्जेक्ट्स हैं, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि मतलब क्यों चूज करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द मतलब अदर 5 सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने ही है, जैसे कि मीडिया लॉ इज समथिंग जो कि आप 2 दिन पढ़ के भी एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हो। बट कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनीज एक्ट और हमारा सीपीसी इज वेरी वास्ट। तो जिसमें आपको मतलब 2-2.5 महीने आराम से लग जाएंगे। एंड दिस इज समथिंग कि अगर आप एक बार पढ़ लेते हो, जैसे सीपीसी एक बार समझ में आ गया, तो दोबारा आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में लोग जनरली लोग डब्ल्यूसीसी ले लेते हैं। डब्ल्यूसीसी में एनडीपीएस था, तो एनडीपीएस एक्ट अभी एज ऑफ नाउ हमारे केस मटेरियल से हट गया है, जो कि मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं सही हुआ, बट ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो मीडिया लॉ ले लो। और मीडिया लॉ में अगर विद रिस्पेक्ट टू योर लिटिगेशन, कोर लिटिगेशन, तो कोर लिटिगेशन से आपको इसमें 2-3 चीजें हैं जो कि बहुत ही बेनिफिट करेगी। सबसे पहली बात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कि बहुत ही रिसेंटली ग्रो कर रहा है, तो इसमें आपको फायदा मिलेगा। बाकी सोशल मीडिया जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे ही मीडिया लॉ की मांग बढ़ती चली जाएगी। दो ये दिस आर द मेजर मेरिट्स जिसको आप देख के मीडिया लॉ ले सकते हैं। एंड इट्स अ इजी सब्जेक्ट,
बट जैसे कि मैंने बताया कि आपको रीसेंट केसेस लिखने होंगे एंड बहुत समझदारी से लिखने होंगे। ऐसे कोई भी केसेस नहीं लिखने होंगे जो कि अभी सब जो डिस होंगे, तो जो डिसाइडेड केसेस ही लिखने होंगे। बाकी दिस इज ऑल। आप सबके किसी का कोई क्वेश्चन हो विद रिस्पेक्ट टू कॉम्बिनेशन, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, तो यू ऑल कैन आस्क। थैंक यू सो मच भैया, एंड आई थिंक आपने मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्लियर कर दिया है। सो यस, एज भैया सेज दैट अगर आप सबको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एनी क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट? और या ओके, सो देयर इज अ क्वेश्चन भैया फ्रॉम वरुण। ही सेज दैट मीडिया लॉ प्लस डब्ल्यूसीसी सही रहेगा? Is या that सही रहेगा, combination? सही रहेगा। मेरा भी ऑप्शनल सही था, बट यही था मीडिया लॉ एंड डब्ल्यूसीसी। बट इफ यू वांट टू गो इनटू कोर लिटिगेशन, तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो अ गुड सब्जेक्ट। तो आप ऐसे डिसाइड कर लो, बट दिस इज समथिंग विच यू कैन टेक टू स्कोर वेल इन ऑल द 5 सब्जेक्ट्स। All right. And is there any other question? सर इसका आगे स्कोप क्या है अगर जानना चाहें तो, लाइक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, लाइक हाउ इज इट हेल्पफुल? मैंने बताया कि जैसे सोशल मीडिया बढ़ रही है, तो वैसे वैसे मीडिया लॉ के भी है। जैसे कि कई सारी मूवीज फिल्म्स आती हैं, सेंसरशिप में अटक जाती हैं। अभी एक रिसेंटली कॉन्सेप्ट चला हुआ है, पर्सनैलिटी को बचाने के लिए एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस आर पुटिंग पिटिशन इनटू द ये हाई कोर्ट्स, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स। तो दिस इज समथिंग विच विल ग्रो एंड ये यही है मतलब लिटिगेशन वाइज। एंड और मतलब इसमें है कि द अमाउंट ऑफ इनपुट यू आर गिविंग एंड आउटपुट, मतलब इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मतलब पढ़ना कम है और नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। और दूसरी चीज, और ये ग्रो करेगा फ्यूचर में, और ग्रो कर रहा है। मतलब जैसे सोशल मीडिया बढ़ रही है, मैंने बताया जैसे पर्सनैलिटी को राइट्स बचाने के अभी रिसेंट केस ऑफ राघव चड्ढा। तो दिस इज ऑल यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम्स। And And so the judgments that you were saying, recent judgments जैसा मैं लिखनी होंगी, so can you please just explain more on that? रिसेंट जजमेंट्स मैंने वही बताया, जैसे कि जो भी इन जनरल जैसे न्यूज में आ रहा है। जैसे कि मेरे टाइम पे बहुत ज्यादा ये था, उमर खालिद का केस चल रहा था कि तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशंस में और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में। तो दिस ऑल केसेस, बट मतलब आपको पहले बात तो ये है कि जितने भी केस मैट में केस दिए हों वो लिखने हैं। But if you can write 2-3 cases on your own, this will fetch you marks, and mind you, good marks, because the examiner will know कि that you are updated, and this is what media law is, that it is evolving, और आपको भी अपने हिसाब से उसी हिसाब से evolve करना है। Okay. There is no मतलब like कि यही recent case होगा, ये होगा, but मतलब I would say कि you should write cases which are decided or in pending in the मतलब not pending, it should be decided. Okay, sir. No. And yeah, there's another question. It's I think by Shivani Singh, and she asks, media law के साथ second subject कौन सा choose कर सकते हैं? And career as a litigation तो ये काम आएगा या नहीं? नहीं, लिटिगेशन में काम आएगा, बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और मीडिया लॉ को जो ट्रेडिशनल लिटिगेशन है उसमें आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ही काम में आएगा ज़्यादातर मीडिया लॉ से। बट अगर फ्यूचर एस्पेक्ट्स को देखा जाए तो मीडिया लॉ इज ऑल्सो वेरी गुड विद रिस्पेक्ट टू लिटिगेशन। एंड एज यू सेड, व्हाट वाज योर क्वेश्चन अभिनंदन? It was a question, बस यही questions थे दो कि हाँ। इसका क्या litigation में काम आएगा या नहीं, and then what is a good subject, second subject जो हम choose कर सकते हैं along with media law. As I said कि if you have to score well in all the 5 subjects, you can choose media law. And along with, I mean, media law, it's special contracts. That's a good combination. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और डब्ल्यूसीसी इज समथिंग जो कि लिटिगेशन वाइज बहुत ज्यादा मतलब इकोनॉमिकली वाइज बहुत ही पैसा मिलता है उसमें। अगर कोई बढ़िया से डब्ल्यूसीसी सीख लेता है, क्योंकि बहुत कम एडवोकेट्स हैं जो कि वाइट कॉलर क्राइम्स में डील कर रहे हैं।
But I would say कि WCC is also a good subject that you should take. All right, Bia. And one question from my side as well. So, what are the sources? जैसे for other subjects we have bare acts and all. तो media and law के लिए apart from the case material जो हमें मिला है, what are some other sources or some is there some particular book जो हम refer कर सकते हैं? Yeah, there's a book called Facets of Law by Madhava. हाँ माधवा. तो वो एक बुक है और एक है मीडिया लॉ इन बासु. वेट फॉर अ सेकंड, आई एम टेलिंग द ऑथर नेम. इट्स लॉ ऑफ प्रेस बाय दुर्गा दास. फर्स्ट बुक. एंड द प्रोफेसर्स इन लॉ फैकल्टी जनरली से कि जो बुक आपको पढ़नी है वो है फेसिट ऑफ मीडिया लॉ बाय माधवी. These are the two books which you can refer, but Faces of Media Law is the book, मतलब go-to book. Okay, Bia. Thank you. And there's another question. Last. So I think Hello. yeah. Last वाली yes, book yes, का you can go नाम. ahead. Hello. Faces of Media Law. मुझे समझ में नहीं आया. हेलो. Faces of Media Law. Am I not audible? हाँ, he has written Adesh Singh. Thank you. Yeah, and there's another question. So, Bhaiya, WCC or special contracts? What's your take? So I think that it should be WCC or special contracts along with this subject. Along with media. So I have taken WCC because of my interest in crime. Criminal law. अगर आपको ऐसा interest criminal law में नहीं है तो then you can go for a special contract. So it depends more on interest. ऐसा कुछ नहीं है Yeah, कि complement better कर रहा है. both are scoring subjects, WCC and special contract. Both are very scoring. और वो भी मतलब syllabus भी बहुत limited है. 2-3 days before exam is enough for WCC. All right. And there's another question by Jitendriya. He says, Siddharth Bhai, one of my friend got back in his subject while appearing for improvement. So can we take chance in this media and law for improvement? I think Jitendriya, what should I say to him? Because I know him personally, so I don't want him to answer this. I will not answer this because he's joking here and wasting time of our students. No issues. I wasn't aware, but yeah. So there's another question via Shivani से पूछा है, इसे पढ़ने के लिए proper content available है या कम है? So नहीं, you content, mentioned a few books, but apart from that as well. So you will not get PYQ of this, जो कि आपको खुद से लेना पड़ेगा. And PYQ आपको वहाँ से मिलेगा. PYQ नहीं मिलेगा जनरली, बट वो फ्रेंड्स कॉर्नर पे PYQ मिलता है जो कि बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है. यू हैव टू टेक PYQ. बस बुक्स ही अवेलेबल है, बाकी आपको अपने हिसाब से आंसर बना के लिखना पड़ेगा, जो कि क्लास नोट्स और बुक. दिस इज द कंटेंट. जनरली जो कंटेंट अवेलेबल होता है वो फिर आपको नेट से ही देखना पड़ेगा. और आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 19 इतने सारे बुक्स पढ़े हुए, कोई भी से कहीं से भी देख लो, बहुत कोई भी आर्टिकल देख लो. All right, Via. And there's with another respect to question. sources, it's very limited. I am saying कि एक ही बुक है, वो फेसेस ऑफ मीडिया लॉ, और बाकी मतलब नहीं है. Okay, Via. And there's another question by Isha Kumari. She asks, Bhaiya, the case material of media law, it contains 37 case laws. Isn't that vast in itself as compared to other optional subjects? Is it really that easy to cover the syllabus? Yeah, it's very easy to cover the syllabus. And believe me, 37 cases तो आपको अभी ऐसा लग रहा है, but it's very easy when you go through these cases. So within मतलब after one reading of the case mat or from anywhere,
you will be very easily to remember these cases. So 37 are there, but more than this is required for you. मतलब as I have said कि इसके अलावा आपको क्या बोलते हैं अपने जो recent cases हैं वो भी लिखने हैं. All right, Bia. And there's another question by Amita Singh. She asks about the scope of media law. So you've Mhm. already briefly told us about it. थोड़ा detail में you can tell us that, you know, if you take the subject, तो आगे जाके क्या उसके benefits हो सकते हैं if you're practicing or if you get into a firm or something of that sort. So what are the benefits? Yeah. So Yes. as I have said twice before this कि आपको as a litigation wise अगर आप media law को देख रहे हो तो this is very evolving field like contempt of court, defamations and like social media जैसे ही बढ़ रहा है तो all of this will be covered. Censorship Act, personality rights बचाने वाला, तो all of this is covered. Bia, So you got yeah. yeah, so all of this is covered in under media law. So this is very recent law और मतलब आगे चल के ये बढ़ ही रहा है. This is the scope. Yes, Bia, thank you. And are there any other questions? अब आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सब्जेक्ट के रिलेटेड या लॉ के रिलेटेड एंड एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. You can feel free. Any other questions? कॉम्बिनेशन में चार सब्जेक्ट में से हमें कोई 2 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, ऐसा है? जी 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 4 में से 2 लेना. और आपके पास मतलब जी हमें टोटल 5 सब्जेक्ट जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा 5 सब्जेक्ट इसमें भी रहेंगे, बस इसमें 4 कॉम्बिनेशन में से हमें 2 लेने पड़ेंगे, कोई ऐसा है? हाँ जी ऐसा ही है. तो 3 सब्जेक्ट आपके होंगे जो प्रॉपर सबके लिए होंगे एंड देन फिर 2 ऑप्शनल चूज करने होंगे, वो 4 सब्जेक्ट में से होंगे. So you will have WCC, special contracts, media law and private international law as your options. इनमें से आपको 2 ऑप्शनल चूज करने होंगे. तो इसीलिए हमने ये सेशंस करवाए थे बिकॉज यू नो थोड़ी क्लैरिटी मिले. थैंक यू. Yeah, well, there's another question भैया. It's भैया आप तक सारे सब्जेक्ट्स लिटिगेशन से रिलेटेड है, तो कॉर्पोरेट से रिलेटेड कौन से है? जनरल क्वेश्चन. कॉर्पोरेट से रिलेटेड हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को ले सकते हो एंड यही है कॉर्पोरेट. और मतलब एज सच कोई कॉर्पोरेट सब्जेक्ट नहीं होता है या थ्रू देन यू विल कि क्या है कॉर्पोरेट का है क्या नहीं है. ठीक है, कोई ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं है कॉर्पोरेट में जाके. इफ देयर विल बी अ केस, क्रिमिनल केस, तो यू हैव टू यूज बीएनएस. और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही यूज करना है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ही यूज होगा. तो मतलब देयर इज नथिंग कि कॉर्पोरेट एक्ट में आपको यही पढ़ना है. And there's another question Bhaiya by Shivani. She says that my interest is in criminal law. So according to it, ये subject कैसा रहेगा? No, it's a good subject, criminal law. In criminal law, because very boring subject and double पढ़ ले तो BNS, BNSS and WCC, all 3 parts of the crime will be covered. And with respect to media law, वो भी मतलब it's not related to crime, but like defamation, contempt of court. How do I say कि ये crime से related है कि नहीं? But मतलब if you have an interest, then you can take media law also. All right. And Amit is asking about the scope of WCC for a career in litigation. So we have covered that in a previous session as well. तो मैं अभी link भेज दूंगा WCC and special contracts का. But Bhaiya, you can also, from your experience as a WCC student, tell us about the scope that it has in litigation as well. It's a very good subject with respect to the scope. और मतलब आसान भाषा में बोलूँ तो काफ़ी अच्छा मतलब पैसा मिल सकता है आपको इसमें if you are going into this field. बिकॉज अभी एज ऑफ नाउ मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, लोग इन द सेंस एडवोकेट्स नहीं है डीलिंग विद वाइट कॉलर क्राइम्स. सो जनरली पीएमएलए और ये सब केसेस में अच्छे पैसे मिल जाते हैं.
and matlab, with respect to this, if you choose this field and do good litigation for matlab 2-3 years only, then matlab, you can make a very good amount. Thank you, Bia. And to all the audience, I've mentioned the WCC and special contract session का जो recording है, वो भी mention किया मैंने chat box में, along with the private international law sessions recording as well. So if you've missed that, you can watch that. And okay, there's another question. But still कोई तो demarcation होगा जिससे हम decide कर सके कि exactly हमें कौन से line choose करनी है, corporate या litigation. Okay, so there's a question related to whether we should choose corporate or we should choose litigation based on our own skills and our own acumen भी है. तो थोड़ा आप उसके बारे में बता सकते हैं. And So अगर आपको corporate is like कि matlab, if you want an easy start in your life, like litigation, normal litigation or traditional litigation mein, if you are a first generation lawyer, you would easily take 4-5 years to matlab, stand in the court sahi se. So but if you are in a corporate, तो अगर आप you will get monthly salaries and your life will be very easy, but you would be not working for yourself, but you would be working for the company. So corporate law is something which has evolved, which has got very interest from the students, from law students. बहुत जल्दी मतलब students now don't want to get into the traditional litigation and don't want to what do I say कि अपना मतलब पसीना और खून नहीं बहाना चाहते. And for easy money people go in corporate law, but I don't मतलब मैं ऐसा कोई वो नहीं कर रहा कि corporate law is very wrong या फिर सही. But if you have interest कि आपको traditional law में नहीं जाना and you want to start earning soon in your life, so you can go in corporate. all right, Bia, thank you so much. And there's another question. It's related to cyber law. So अगर किसी को cyber law जो है pursue करना है, तो उसके लिए ये जो 4 subjects हमने mention किए, उसके लिए best combination कौन सा होगा? साइबर लॉ इट्स समथिंग, साइबर लॉ का अभी कुछ भी नहीं है. 5th सेमेस्टर में आपको आईटी लॉ मिलता है, वही साइबर लॉ समझ लो. अभी तो 3rd सेमेस्टर में कोई साइबर लॉ का नहीं है. 5th सेमेस्टर में आईटी लॉ मिलेगा, वो ले लेना आप. So इसमें इन जो 4 subjects हैं, इनमें तो कोई वो नहीं है ना कि you have नहीं to pick some. All right. नहीं. Yeah. And there's another question. There's no such blanket black and white vertical. Okay. So that's Kajal Didi, I guess, in the chat box who's replying to someone else. There's another question by Shailesh Kumar. Is it growing in rural areas or mostly it's okay? So I think there's some conversation that's going on in the chat box. Maybe, yeah, related to that. Is there any other questions with respect to the subject? Yeah, with respect to law in general, because भैया is getting into 3rd year, तो उन्होंने 1 साल हमसे ज़्यादा experience किया है. So anything else that you guys all want to ask? You can feel free. You can unmute yourself and you can ask. या आप chat box में लिख सकते हैं. Okay, so I think ऐसा कोई question है नहीं. So I'll all right. So we can I think call it a day, and otherwise after this session as well, जैसे आप अगर ये subject को choose करना चाहते हैं, choose करते हैं या पढ़ते हैं, and if you have any other questions after that, so you can feel free to hit up Siddharth Bhaiya. We'll after this session ends, we'll share the recording as well along with the contact details of Siddharth Bhaiya as well. And so when will the results be declared? Oh, that's something that the university only knows. Usually तो August end में होता है. So let's wait and let's see. उसका भी fixed date नहीं है. But yes, as I was saying that any questions that arise later on जब आप पढ़ रहे हैं subject या कुछ भी होता है, तो you can always message Siddharth Bhaiya. We'll share his contact details as well and we'll share this recording as well, ताकि आपके अगर कोई दोस्त हैं जो ये सेशन नहीं देख पाए तो they can also sort of access it on YouTube. बाकी भी हमारे सारे जो सेशंस हैं, चाहे वो एग्जाम प्रेपरेशन जो हमने वर्कशॉप करवाया था ऑन सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 एंड जो हमने अभी ये पूरा सीरीज करवाया है विद रिस्पेक्ट टू द ऑप्शनल्स,
बाकी सारे subjects का. All of that is also on the YouTube channel as well. So you guys can check that out. It's Udaan Initiative if you search on YouTube. And do stay connected to the group. वहाँ पे हम लोग जो है सब कुछ share करते हैं. The materials and everything. We'll share the recording as well there. So thank you so much for joining. I think I'll just invite Kashvi to end the session. And we look forward to having more such sessions. अभी जो permanent जो subjects हैं जो हम सबको पढ़ने ही हैं जो options नहीं है उन पे भी कुछ अच्छे sessions हम लोग करवाते हैं. We'll do sessions on LinkedIn and other things as well. So stay connected to Udaan, and I'll just invite Kashvi. Kashvi, you can come and conclude the session. Thank you. So as we come to the end of today's session, I would like to sincerely thank Siddharth sir for sharing his valuable insights, experience and guidance with us. I would also like to thank Abhinandan for organizing this session and continuously working towards creating such meaningful learning opportunities through Team Udaan. A heartfelt thank you to all the participants for joining in and making this session engaging and interactive. We hope today's discussion has provided you clarity regarding media law and helped you take a more informed step towards choosing your option subject. Do stay connected with Team Udaan for future guided sessions, workshops, internship opportunities, and other academic initiatives. Once again, thank you everyone and have a good day ahead.